गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वही सूरमा है इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों में, कोई पद चिन्ह बनाता है। वंदनीय, सादगी और सरलता के सच्चे प्रतीक, हमारी कंपनी के आधार स्तंभ सर श्री राम को नमन, वंदन व श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं मनीष जोशी अपनी सहयोगी शुभदा के साथ 138वीं श्री राम जयंती के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। It's an absolute honor for both of us to take you through today's event. Sir Shri Ram was a man of conviction and courage, a man of integrity and industriousness, a man of great versatility and vision, but above all, a humanist at heart. सर श्री राम को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही सुंदर भजन से। स्वर दे रहे हैं मास्टर अभिराम, पुत्र श्री अभिषेक और श्रीमती पूजा भरेरिया। हारमोनियम में है मेहुल शर्मा, ढोलक में सुनील, कीबोर्ड में शिव और तबले में सर्वप्रिय। कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे, हुए गुलाबी लाल सुनहरे, रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन, घर आंगन वन उपवन उपवन, करती ज्योति अमृत के सिंचन, करती ज्योति अमृत के सिंचन, मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके,
कलश छलके ज्योति 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 कलश छलके Sir Sri Ram's understanding of people and problems was boundless, as was his sense of personal discipline in all that he endeavoured. Sir Sri Ram was not one to be easily dejected or diverted by adversity. He believed passionately in the value of time and in man's ability to overcome obstacles. His philosophy could be summarized in his own statement. This time, like all times, is a very good time, if we but know what to do with it. He firmly believed that the entrepreneur was a trustee of the community and accountable to the worker, the consumer, the shareholder, and the government. With his high ideals and compassionate outlook, Sir Sri Ram left a rich legacy for contemporary and future business practices. It's time for us to present to you an AV on Sir Sri Ram's inspirational life, his vision, ideals, and principles.
I would now like to invite our Chairman and Senior Managing Director, Mr. Ajay Shriram, our Vice Chairman and Managing Director, Mr. Vikram Shriram, our Joint Managing Director, Mr. Ajit Shriram, and Mr. K.K. Kaul, Whole-Time Director, for an address on this special occasion. Good morning, ladies and gentlemen. I'd like to wish you all a happy Shriram Jayanti. Unfortunately, we cannot be all physically together due to this corona pandemic, but I sincerely hope next year things will change and we will be there together. Corona definitely has played up quite a problem again. My request to all of you is please be very cautious, please don't take liberties, and wearing a mask, keeping a distance, and washing hands and being cautious is the most advisable step forward. Sir Shriram was the founder of our group, and we have learnt a lot from him. His values, his approach towards business, his approach towards people has been something to really learn from. I remember seeing him when I was a kid and was amazed to see how he had patience for everybody. It was absolutely a wonderful experience. When I think back, there's a lot of values Sir Shriram gave us, but I'll pick on 3 of them to share them today with all of you. One is his approach of trust in people. He genuinely believed that it is the people in the organization who are the main drivers of the business, and one might have the best of everything, but not having the right people will be a big loss to the business and the company. His trust in people was such where when a friend of his approached him to put up a ceramic factory in Calcutta, Bengal Potteries Limited, he told him, saying, look, you know the technology, you must be committed, and if you put in some money in the business, I will put in the rest and we'll put up this business together. And Bengal Potteries in its own days was a leader in the Indian market in the crockery business. That was his trust in people. He also had people as executives who were from the area. For instance, Daurala. He got a gentleman who was from the local area, who knew the area and the activities in that area, knew the farmers, had a good reputation of being a trustworthy person, and gave him the responsibility to put up Daurala Sugar Factory. So his trust in people, his openness with people is a great learning. The second point of his, which we value a lot, is his approach towards reputation and credibility. He did believe that transparency is very important and relationships are built on openness, transparency and trust. And that showed up. He had a very good rapport with government officers at that time, government officials. He was on the board of Reserve Bank of India, the ILO and others on behalf of the Government of India. Besides, of course, having his own approach towards initiating FICCI and other organizations. But it was the reputation and credibility which stood him really well. In the industry circles, he was very respected and people would take his word as gospel truth. I think that's a great learning in its own way. And third is his approach for society. We have seen how he worked on the social front, whether it was schools or colleges. Even today, Shriram College of Commerce, Lady Shriram College were all set up by Sir Shriram. He had a very clear approach of working for society in the locations where we are, and that was a very positive sign of his showing his concern for people around him. So briefly, I think these are 3 areas which I wanted to touch on. I'm happy to state that we too believe in the same values. And as you would have seen, our approach is similar, whether it's regarding trust in people, whether it's regarding building our reputation and credibility, whether it's doing work for society. We believe that's very important as a responsible business house. Ladies and gentlemen, once again,
Wish you all the very best on the occasion of Shri Ram Jayanti. I would again request you all to be very careful, as unfortunately, at least in Delhi, we are seeing the COVID cases going up. But please be careful and wish you and your families all the very best always. Goodbye. Ajay Bhaiya, Ajit, KK, friends and colleagues. It gives me great pleasure to be with everyone today on the occasion of Shri Ram Jayanti. Everyone knows about the great industrialist, the great philanthropist, and the great educator that Sir Shri Ram was. However, there are a couple of points, a couple of thoughts I thought I'd share with you that you may not know, that he was also a great innovator and a lateral thinker. When the opportunity came in the early 1930s for acquiring a sewing machine factory in Calcutta, he decided to acquire Usha sewing machines as a diversification, but a lateral diversification. As far as he was concerned, it was enlarging the market, enabling the average Indian to own a sewing machine. In those days, sewing machines were only imported from Germany, and he got into the line of sewing machines as a diversification. That just shows the capability of the gentleman to think laterally and widely. In another case, in the case of Delhi, he was probably one of the earliest Indians to put up a verbund. We've talked about the word verbund in the last few months, but I'm not sure if everyone knows that in the DCM chemical works on Najafgarh Road that was put up in the 30s and 40s, there was a caustic soda plant. Attached to that, there was a DDT plant to consume the chlorine. Attached to that, there was a Vanaspati plant to consume the hydrogen. And to top it off, the waste heat energy from the boilers was used to power the processing house of Swatantra Bharat Mills, which was adjacent to that. That just shows that even in those days, he had the foresight of verbund thinking, cost efficiencies, integration, and intelligent configuration. I just thought I'd share these thoughts with you because a lot of you are probably not aware about how capable he was, how wide his thinking was, and how he was able to put things together for the betterment of the group. In the end, again, I'd like to wish you all on the happy occasion of Shri Ram Jayanti and all the very best. Thank you. Good morning, everyone. Wishing you all and your families a very happy Shri Ram Jayanti. And all the very best to the people who got awards today. The endemic is not over yet, and we all need to be careful regarding the COVID virus. And I'm glad that various governments are taking the stand now to start wearing masks again. I think it's desirable to contain the infection spreading faster and further. Going by our value statement of I act on, I will urge you all to please work on a few of the aspects such as agility, openness, newness, customer centricity. Once again, I wish you and your families a very happy Shri Ram Jayanti and all the very best for the function ahead. Thank you. CMD sir, BCMD sir, GMD sir, friends and members of DCM Shri Ram family, Namaskar and good afternoon to all of you. On the occasion of Shri Ram Jayanti, I would like to wish you all the best and happy celebrations. For us in DCM Shri Ram Jayanti is an important day, is an important event which we look forward to year on year with great excitement, joy and fervor. On this day, we remember our founder Sir Shri Ram and pay our regards
pay our tribute and in a way pay our gratitude to him for creating this wonderful organization, this great family which we all feel proud to be a part of. Over the years, we have been guided and influenced by thoughts, actions, and leadership style of our founder, Sir Shri Ram. We continue to follow and draw our learning from our founder's management philosophy, his approach to human relations, and his belief in inclusive growth. The values and beliefs professed and practiced by him even today continue to form the foundation of our own values and beliefs framework, which we now know as IACTON. On this day, as our tribute to the memory of our founder, let's pledge to go back, look again at the values that we have enunciated for us in IACTON, and live and breathe those values and imbibe them in every way. Let these values continue to write and shape the destiny of our organization. Let's be the change which we wish to see around us. Friends, Shri Ram Jayanti is also an occasion to get together and celebrate through cultural activities, carnivals, fun, and melas. Last 2 years, unfortunately, because of the corona restrictions, we have not been able to get together physically and our celebrations have been subdued. But hopefully this year we are in a better situation, and I'm quite sure and quite hopeful that we will be able to carry on, we'll be able to physically gather and carry on our celebrations, traditional celebrations, complete with culture events, melas, carnivals, and lots of fun-filled eating and enjoying. Yes, of course, while celebrating, continue to follow corona-related precautions and stay safe. I'm particularly looking forward to the cultural performances given by our children in our family and the young and budding talent. I look forward to it I look forward to it with great expectations. Friends, Shri Ram Jayanti is also an occasion to recognize, appreciate, and celebrate the outstanding achievements of our colleagues and family members. Many of us will receive long service awards for their dedicated service and contribution to this organization. I feel happy for those who would have completed the landmark 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40 years of service. We are fortunate that we have a large number of such colleagues who receive this honor year on year. I believe while their accomplishment, their achievement is certainly long in terms of milestone number of years, but it's equally and more so long and for the immense contribution that they have made into the making of this organization. My congratulations and best wishes to all those who will be awarded and honored this year with long service awards. I also believe that as part of the Shri Ram's Jayanti celebrations, we also celebrate some of the outstanding accomplishments made by the young children in our families, particularly in the field of academics or sports. I'm sure there will be quite a few whose accomplishments we will be honoring, whose accomplishments we will be rewarding, and my best wishes to them also. In the end, again, lots of best wishes to you for a very excellent celebrations, very safe celebrations, and hope you will all enjoy this Shri Ram Jayanti. Thank you, goodbye, and have a great day. हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्री अजय श्री राम का, श्री विक्रम श्री राम का, श्री अजीत श्री राम और श्री के कौल का कि उन्होंने आज हम सबको इस सभा में संबोधित किया। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है,
चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इन प्रेरणादायक पंक्तियों को अपने जीवन का सार बनाकर अपने मजबूत इरादों और काम के प्रति अपने जुनून से सर श्री राम ने DCM समूह को देश के दिग्गज औद्योगिक समूहों में से एक बनाया। सभी के साथ समान व्यवहार और व्यापार की नैतिकता उनकी सफलता के सबसे बड़े गुण थे। सर श्री राम ने अपने जीवन में यदि सबसे बड़ा स्थान किसी चीज को दिया तो वो थे मानवीय संबंध। समाज के हर व्यक्ति को जो सम्मान उन्होंने अपने व्यवहार से दिया वो बेमिसाल था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी मानवीय संबंधों और मूल्यों को सर्वोपरि रखा गया है। इन्हीं संबंधों को सम्मानित करने के लिए अब हमारा अगला कार्यक्रम, जो हमेशा ही हमारे इस श्री राम जयंती समारोह का मुख्य आकर्षण रहा है। जी हाँ, आप सही समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले भाग दीर्घ सेवा सम्मान के लिए। आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे हमारे उन साथियों की तस्वीरें जिन्हें इस वर्ष दीर्घ सेवा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जहां एक ओर देश में उद्योग व शिक्षा के विकास में भागीदारी की, वहीं कला व कलाकारों को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार थे जो दिल्ली प्रवास के दौरान सर श्री राम के ही मेहमान होते थे।
दिल्ली में कला व संगीत के दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र श्रीराम भारती कला केंद्र और श्रीराम सेंटर के बनने में उनका ही प्रोत्साहन था। हमारे DCM श्रीराम परिवार में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है और उन्हीं में से कुछ प्रतिभाएं पेश कर रही हैं हमारा अगला कार्यक्रम, जो है एक डांस परफॉर्मेंस। कलाकार हैं गौरी, श्रद्धा, ईशान, स्मृति, साक्षी, विनीता और अपूर्वा।
Well, that was a beautiful performance. I'm sure all of you thoroughly enjoyed this musical extravaganza. वैसे हमारे colleagues के इस fabulous act को देख के, I sometimes wish I was this talented. I wish I at least had something technical, intellectual to say about this beautiful art form. But you know what? ये मेरा expertise नहीं है, and for that reason, I'm out. If you haven't guessed already, this is me setting context for our next act. A fun take on a show which has been trending not just for its amazing business ideas but also the one-liners by the Sharks and the countless memes on it. To take it forward, I'd like to welcome Rahul Pasi, Vian Pasi, Monica Sharma, Shruti Kapoor, Ankur Goyal, Sanjeev Sharma, Ashish Pandey and Naveen Kumar to present to you Think Tank. नमस्कार, मैं कश्मीर ग्रोवर। मैं यहाँ जज हूँ। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे परिवार में किसी ने आज तक बिजनेस का बी भी नहीं देखा। उसके बावजूद भी मैंने बिजनेस किया। हम लोग इतने मिडिल क्लास हैं ना कि जब टूथपेस्ट खत्म होता है तब उसको फेंकते नहीं हैं। उसकी ट्यूब को बेलन से बेल के जितना टूथपेस्ट होता है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद भी उसकी जान नहीं छोड़ते हैं। उसको चाकू से काटते हैं और बचा हुआ टूथपेस्ट भी उसमें से निकालते हैं। और सुनोगे, जो टूथब्रश होता है ना, उसके ब्रिसल्स घिस जाने पे फेंकते ही नहीं है। जब तक उसके अंदर का प्लास्टिक मसूड़ों पे ना टकराने लगे ना, उसको उस दिन तक यूज करते हैं। और बताऊं, जब हम लोग होटल में जाते हैं तो वहां पर खाने के बाद जो सौंफ मिलती है ना, उसमें जितनी खाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा मुट्ठी में लेकर के अपने साथ आ जाते हैं। और बताता हूं आपको, जब साबुन घिस जाता है ना तो उसको फेंकते नहीं है। नया साबुन लाते हैं और वो पुराना घिसा हुआ उसके ऊपर चिपका के फिर यूज करते हैं। ऐसे कैरी ऑन करते हैं। एक लास्ट और बताता हूं आपको, टीवी के रिमोट कंट्रोल पे से पन्नी जिंदगी भर नहीं उतारते। जब फट जाती है ना तो उसको सेलो टेप चिपका चिपका के यूज करते हैं। इतने मिडिल क्लास हैं, उसके बावजूद भी मैं बिजनेस में आया। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह 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 वाह। अरे क्या कर रही है तू? अभी तो मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, बीच में ही आ गई। यार गिव मी 30 सेकेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसमें तो मेरी एक्सपर्टीज है। हाय, मेरा नाम है शमिता थापर और मैं पुणे से हूँ। मेरे पास घर है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है और तो और एक स्पीसी माँ भी है। और तो और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं यहाँ आई हूँ आप सबके बिजनेस आइडियाज को सुनने, और जो सबसे बढ़िया लगे उससे ढेर सारी इक्विटी इकट्ठी कर कर एक घर, एक गाड़ी और एक मॉम, ओह सॉरी वो तो एक ही रहेगी। कुल मिलाकर मेरा प्लान है कि मैं आप सबके पैसे को अपना बना सकूं। और मैं पुणे से हूँ। हाय, आई एम रियूज बंसल और मैं सेकंड हैंड चश्मे बेचता हूँ। बड़ा करने के लिए ना लोगों का बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है भारत में कुछ 100 करोड़ लोगों के पास चश्मे नहीं है। भाई क्या कर रहा है तू?
भारत की कुल आबादी 130 करोड़ है। अबे पर उनमें से कोई 4-5 भी तो लेगा ना। मेरा तो बिजनेस मॉडल ये है, जिसके पास एक चश्मा है उसको दो, दो वाले को तीन, तीन वाले को चार और चार वाले को 6, अलग अलग रंग के दो। अरे उनको टीवी दिखाओ, उनकी आंखें कमजोर करो और फिर उनको चश्मा बेच दो। मैं यहाँ पे भी लेके आऊँ, ये ले, ये वाला तेरे पे अच्छा लगेगा, लगा ले, बदतमीज इंसान। अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुआरा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ। अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हाय, मैं गिरपम मित्तल और मैं शादी करवाता हूँ। ये लीजिए फोटोज, आप भी पसंद कीजिए। आप भी, अरे यहाँ तो लड़की भी है। चिंता मत कीजिए मैम, हमारे पास सेम शक्ल के लड़के भी हैं। हमने इंटरनेट सर्विसेज तब शुरू की थी जब इंडिया में इंटरनेट था ही नहीं। क्या करते थे, फेक प्रोफाइल बनाते थे, बढ़िया सी प्रोफाइल बनाते थे और बाद में बोल देते थे उनकी तो शादी कहीं और हो गई। जब कोई प्रॉब्लम आती तो उसको बोल देते थे भाई रिश्ता तो उसका कहीं और हो गया, उसको दूसरा रिश्ता चिपका देते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि बाद में मुझे Z+ सिक्योरिटी लेनी पड़ी, पर मेरी कंपनी चल निकली। मेरे पास बहुत पैसा है, बताओ किसकी कंपनी खरीदनी है। ये लीजिए चेकबुक, अमाउंट भरिए और आप सबके बिजनेस का 5% इक्विटी मेरा। इसमें साइन कहाँ है? ये लीजिए मैम साइन। आपकी शादी हो गई? हाँ हाँ हो गई है। अरे मैम क्या फर्क पड़ता है, शादी थोड़ा ही करनी है, सिर्फ फेक प्रोफाइल बनानी है। एकदम सुंदर दिखते हो। कम से कम 100-200 लड़के, इसी बहाने मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे। प्लीज एक फेक प्रोफाइल बना दीजिए। यार ये तुम लोग क्या बकवास करे जा रहे हो भाई? कंटेस्टेंट कब लेंगे? जल्दी कंटेस्टेंट भेजो, नहीं तो अभी तुम्हारा दोगलापन निकालता हूँ सबका। अरे भाई, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप आइडिया है और वो है शादी तुड़वाने का, और पहली शादी तेरी टूटेगी। बिल्कुल बकवास आदमी है। कंटेस्टेंट भेजो, चलो जल्दी करो। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अरे तुम क्या रटी रटाई लाइंस बोलने आ जाती हो? उनको एटलीस्ट अपना आइडिया तो बताने दो। हेलो शाय, मैं हूँ चिंटू और मैं हूँ रिया और हम हैं फाउंडर भिखारी ट्रेनिंग सेंटर एंड एप्लीकेशन के। देखिए, आपकी पार्टनर एक विमेन एंटरप्रेन्योर है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट पे इंटरेस्टेड हूँ। सर, मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ। श्योर श्योर। सर पैसे? अरे ले ले भाई, सब ले ले। देखा आपने, मैंने आपकी जेब से कैसे पैसे निकलवा लिए। अजीब दोगलापन है। मेरी जेब से निकलवा के दिखा पैसे, फिर मानता हूँ। चल सर आप भी डेमो लीजिए। दो। सर पैसे? जा नहीं देता वैसे। पैसे तो सर आपको देने पड़ेंगे। निकालिए पर्स। ये लो। फोन भी निकालिए। हाँ लो, ये लो, सब ले जाओ। गाड़ी की चाबी ले जाओ। देखा आपने, हम कैसे कस्टमर के हिसाब से अपना प्लान कस्टमाइज करते हैं। ऐसे हमारे पास एक नहीं हजारों समाधान हैं, जिससे हमने हजारों भिखारियों को नौकरी दी है। हम लोग उन्हें कपड़े, ट्रेनिंग, मेकअप, यहाँ तक कि उन्हें भीख मांगने की लोकेशन भी मुहैया कराते हैं। हमारे पास मैप पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कौन सी लोकेशन पर भिखारी है और कहाँ पर स्कोप है। और जब कोविड के समय पर बहुत सारी कंपनियां डूब रही थी, तब हमारी कंपनी का टर्नओवर कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा था। हमारा आईपीओ भी लॉन्च होने वाला है और हमने तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करी है कि हमारे को टैक्स भरने का ऑप्शन दिया जाए, ताकि हमारी कंपनी देश की प्रगति का हिस्सा बन सके। देखिए, मैं भिखारियों से रिलेट नहीं कर पाता और मेरी इसमें एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो इसलिए आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भाई
क्या कर रहा है तू? स्क्रिप्ट का रट्टा मारने थोड़ी ना बोला था, इसकी लाइंस भी तूने ही बोल डाली। वाह बेटा वाह, तुम लोगों को बर्बाद ही करना है, वैसे ही बर्बाद कर दो ना मेरे को। शो का माध्यम से क्यों कर रहे हो? पहले ही धंधा मंदा पड़ा है, ऊपर से तुम लोगों का ड्रामा देख रहा हूं मैं यहाँ पर। कश्मीर, कश्मीर, ये क्या कर रहा है भाई तू? अरे 2 मिनट साइड में आ, तेरे से बात करनी है। देख भाई, हम दोनों इसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तू इनके कटोरों पे अपना यूपीआई चिपका दे और मैं इनको अंधों वाला काला चश्मा दे दूंगा। इनका पता नहीं पर अपना धंधा चल निकलेगा। ठीक है, तो 15% इक्विटी के लिए 1 करोड़। वंडरफुल डील। हम अभी आपको सोचकर बताते हैं। अरे जाओ कंगलो, तुम हमें क्या फंड कराओगे? हम तो अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए आए थे, इस साल भी आए हैं और अगले साल भी आएंगे। भाई गजब बेइज्जती हुई है तुम्हारी तो। सीरियसली यार, तुम्हारी न्यू ही जैसे। हमने पैसा लगाया ही नहीं। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। नमस्कार, मेरा नाम है छोटा भीम। मेरी कंपनी का नाम है छोटा भीम एंटरप्राइजेज। हम छोटे बच्चों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कई बार छोटा बच्चा वॉशरूम में हो और उसकी मम्मा छोटे इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हो, तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करेगा और हम उसकी मदद करने आ जाएंगे। और जैसे कि कई बार बच्चा होमवर्क करना भूल जाता है, तो अगर वो हमें कॉल करेगा, हम उसकी मदद करने आ जाएंगे। और जैसे कि कई बार मंथ एंड पर उसके पापा बिजी हो और उसको भूल जाएं, तो वो हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल करेगा और हम उसकी मदद करने आ जाएंगे। ऐसे हमारे पास और बहुत सारी डील्स हैं। वाओ, सही है। देखो, मुझे क्या लगता है कि कुछ भी कहो तुम लोग, लेकिन इस बच्चे का प्लान तो मुझे ही लेना चाहिए। ये मेरे को प्लान है। नहीं, मैं किसी को भी अपनी डील नहीं बेचूंगा। नहीं। ले भाई लालची इंसान, ले ले तू। तुम्हारे चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। तुम्हारे चक्कर में अच्छी खासी डील क्या चल डील मिल रही थी यार? हेलो शार्क्स, मेरा नाम है स्टीव रॉब्स फ्रॉम यूएसए। अरे भाई सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, तुम कहाँ से आ गए यूएसए से? सर यूएसए उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। नाम भी चेंज कर दिया यूएसए का। चलो तो भाई ठीक है, क्या बनाते हैं आप? सर मैंने एक ऐप बनाई है। जिन लोगों को नहीं पता कि ऐप क्या होती है, उन लोगों को बता दूं कि मुझे भी नहीं पता कि ऐप क्या होती है। जब आपको पता चले तो सबसे पहले मुझे बताएं कि ऐप क्या होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल बकवास आदमी है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। बोलो भाई आप। सर मेरे हिसाब से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लोग गरीब हैं। आप हमारे ऐप के ज़रिए अपनी किडनी रेंट पे दे सकते हैं और बदले में आपको मिलेगा आईफोन। जिन लोगों को पता नहीं है कि किडनी क्या होती है, उनको मैं बताती हूँ। किडनी बीन्स को हम हिंदी में राजमा कहते हैं और हमारी सोसाइटी में होने वाले फंक्शंस, शादी, एनिवर्सरी पर हम इसको चावल के साथ परोसते हैं। और तो और ये थोड़ा महंगा होता है, इसलिए हम इसको एक ही दफ़ा बनाते हैं, वो भी महीने में। पुड़े, अपना मुंह बंद करना है यार, उसको बोलने तो दे। सर अगर आप चाहे तो मैं किसी की किडनी निकाल के आपको डेमो दिखा सकता हूँ। क्या? लेकिन सबके पास मेरे पास आईफोन है। इसके पास नहीं है। लेट जा भाई, आप इधर आ जाओ। मैं लेट जा। फेस में डॉक्टर कोट। ये लीजिए सर। दर्द तो नहीं होगा ना भाई? नहीं नहीं, लेजर टेक्नोलॉजी है।
डाउन जा रहा है। ऑक्सीजन वो भी डाउन जा रहा है। हार्ट बीट ऑलमोस्ट स्टॉप। I think we are losing him. I think we are losing him. अरे मेरी माँ। हो गया अभी जिंदा हूँ मैं। मुंह से कपड़ा तो हटाती इसके। बैठाओ इसको। ला आईफोन तो दे मेरा। अरे हाँ सर बिल्कुल, ये लीजिए आपका आईफोन। इसकी फाइल हटा दो यार, अच्छी तरह बैठा। बाकी बकवास तो ठीक है, लेकिन रेवेन्यू मॉडल क्या है तुम्हारा? पैसा कैसे कमाते हो? सर हम जिनकी किडनी निकालते हैं ना, उनको वापस ही नहीं करते, और तो और हम उनका बाद में फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। भाई बिजनेस आइडिया है तुम्हारा, रैकेट चला रहे हो यहाँ पर। इतनी घटिया सोच किसी की हो ही क्या सकती है? ये मुझे लगता है दुनिया का पहला और आखिरी आइडिया है जो किसी के दिमाग में आया हो। इसके बाद तो मैं कह रहा हूँ भगवान उठा ले मुझे। मुझे क्या? रुक रुक रुक, तुझे उठा ले। अरे अरे नहीं, नहीं। अरे यार, जिंदा मर गया। सांस देखना। क्या कर रहा है तू? भाई आप लोगों के पास ऐसे जो भी बकवास आइडिया हो उसको सही जगह पे लगाएं और यहाँ ना लाएं, नहीं तो बिना वजह लपेटे जाओगे। भागो। संगीत मन के तारों से जुड़कर जीवन के कठिन या सरल पलों को मिठास से भर देता है। हमारा अगला कार्यक्रम भी एक संगीतमय प्रस्तुति है। पेश है हमारा म्यूजिक बैंड सोच, जिसने पहले भी कई बार आपको अपने संगीत से एंटरटेन किया है। बैंड के मेंबर्स हैं वाईपी सिंह, नवीन, हेमंत, कपिल, कुणाल, हर्षिता और नेहा। छुपी बात हुई सामने आ जाना, कहाँ ढूंढा तुझे, तक है तेरी बात। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे पूरा आसमां है। तेरे किस्सों जैसा बोला करो ना जहाँ है यहाँ सपनों तेरे बदन हो बेफिक्र
सूरज करे इशारा, चंदा तू है कहाँ, मेरे चंदा तू है कहाँ। लुका छुपी बहक गई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। Thank you, Neha. Now let's welcome Mr. YP Singh on the drums and Kapil on the lead vocals. Thank you. We all have lost people in recent times. This song is dedicated to all those people who couldn't make it, but I'm sure they are giving their blessings from the top. आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो यूं, साथ बाकी है, गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। रात भी ना बटी ना कटी, रात भी छेड़ती मारती। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए हम तुम गए, हर बात बाकी गए क्यों, जिए क्यों, गए क्यों, जिए क्यों। सवेरा मेरा, मैं तेरा हूँ रास्ता, है कश्ती तेरी किनारा मेरा, है तू ही तो है वफा, तू बारिश मेरी सवेरा मेरा, मैं तेरा हूँ रास्ता, है कश्ती तेरी किनारा मेरा।
है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही हम संवर गए। रूह का बंजारा रे परिंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा, छोड़ के रे घरौंदा तोड़ के गया छोड़ के। झरना करूं बंद बंद, बह जाए बूंद बूंद, तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे। वे मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा। गूंजा सा है कोई एक तारा वे मजा है तेरा एक तारा। गूंजा सा है कोई एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा। Thank you. So, ladies and gentlemen, let me now introduce you with my band members, Mr. YP Singh sir on drums, Mr. Hemant on guitar, Harshita on percussions. Now, I welcome the most beautiful voice with us, Mr. Mathu sir, Mrs. Neha, and Mr. Kunal to play the next song. Thank you. जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर। रास्ते में कहीं रह गए हम नशी, तुम कहाँ, तुम कहाँ। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए। ओ मेरे दिल
के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। So, now we want you all to go back in time, in the times of the Ramayana, where Ravana praises Lord Shiva and Lord Rama praises Ma Durga. So we have tried to merge two different shlokas and we wish to have blessings from both of them. So I invite Mr. Kunal on the lead vocals. जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाण्डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरद्भुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदुसराङ्घ्रि पीठ भूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः। ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग बहनि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वला धनञ्जयाहुतीकृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रिका प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। साथियों, इससे पहले हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी कलाकारों का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों का, इस इवेंट को कंपाइल करने के लिए हमारी एजेंसी द्रुतगामी का, जिन्होंने बहुत मेहनत से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को तैयार किया। आपसे अगले वर्ष फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।